خبر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں احمد علیم حیدر اور میں ہوں سمرین طفیل۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا ہی رہے، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ 23 مارچ یوم پاکستان۔ 23 مارچ ایک وعدے کی پہچان کا دن۔ یہ دن مسلمانوں کی ان تمام جد و جہد کو ظاہر کرتا ہے جو اس عرض پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کی گئیں۔ کورونا وائرس کے باوجود یہ قوم 23 مارچ کو نہیں بھولی۔ یوم پاکستان آج پورے ملک میں ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں مملکت خداداد کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ کورونا وائرس کے باوجود تقریبات محدود کر دی گئیں۔ منعقدہ تمام تقریبات میں قواعد و ضوابط کی پاسداری یقینی بنائی جائے گی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ ایئر وائس مارشل ندیم اختر خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں آج تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ ریاست مدینہ کی طرح پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم قرارداد پاکستان پر اپنے بیان میں کہا، برصغیر کے تمام مسلمانوں نے ہندوتوا ذہنیت سے آزادی کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا فیصلہ کیا۔ ہمیں قائد اعظم کے اتحاد، عقیدے و نظم و ضبط کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آج کے دن مقبوضہ کشمیر کی عوام سے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ آئیں پاکستان کو ریاست مدینہ کے مترادف ترقی پسند اور خوشحال ریاست بنانے کے عزم کی تجدید کریں۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں 23 مارچ کو ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ مظلوم کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے دہائیوں سے محکوم بنا رکھا ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر صدر مملکت عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقوام عالم کو غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جد و جہد کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی نے مزید کہا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال بنانے کا عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ کہا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے رواداری اور انسان دوست معاشرہ بنانے کی جد و جہد رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ عارف الوی کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اہم کردار ادا کرنے والے اپنے ہیروز کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اتحاد، ایمان اور تنظیم کی مدد سے ہم اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں آزادی بہت ہی قربانیوں کا ثمر ہے۔ قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان کا سفر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا کہ آزادی کی تاریخ میں 23 مارچ کے دن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بحیثیت قوم ہم قائد اعظم اور ان کی زیر قیادت قرارداد پاکستان منظور کرنے والے مسلم لیگ کے اکابرین کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عثمان بزدار نے کہا کہ بحیثیت قوم ہم نے پاکستان کے موجودہ چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں تحریک پاکستان کی حکومت نئے پاکستان کی بنیاد رکھ چکی ہے۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان اس منزل کی جانب بڑھ رہا ہے جس کا خواب قائد اور اقبال نے دیکھا۔
दूसरी जानिब इस्लामाबाद में खराब मौसम के बावजूद योम पाकिस्तान की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। ISPR के मुताबिक योम पाकिस्तान परेड का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। अब परेड 25 मार्च को होगी। दूसरी जानिब वफाकी दौर हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 25 मार्च को पाक आर्मी की परेड के सबब मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। यौम पाकिस्तान की परेड इस्लामाबाद में ख़राब मौसम के बायस तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। ISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान परेड का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। अब परेड 25 मार्च को होगी। दूसरी जानिब वफाकी दौर हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 25 मार्च को पाक आर्मी के परेड के सबब मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के कई शहरों में यौम पाकिस्तान मुबारक के पोस्टर लग गए। पोस्टरों में बानी पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हुर्रियत रहनुमाओं की तस्वीरें नुमायां हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, मकबूजा कश्मीर की अवाम की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को 23 मार्च की मुबारकबाद। आज तजदीद अहद का दिन है। आज कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत को उजागर करने का भी दिन है। मैं सारी पाकिस्तानी कौम को तहे दिल से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। आज का दिन 1940 के अंदर 23 मार्च को जो एक हिस्टोरिकल लाहौर रेजोल्यूशन पास की गई, जिसने रास्ता हमवार किया पाकिस्तान को वजूद में आने के लिए, एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड के लिए। आज भी कश्मीरी कौम अपनी उस करारदादों के बारे में पूछ रही है UN की तरफ से कि क्या हुआ, क्या फैसला हुआ। कश्मीरियों को आज तक 70 सालों से आज़ादी नहीं मिली और कश्मीर की गलियों और कूचों के ऊपर हर जगह पाकिस्तान को मुबारकबाद के बैनर्स लगे हुए हैं, दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम को याद दिलाया जा रहा है कि कश्मीरियों को 70 साल से ऊपर हो गया है और हर जगह शहादतें हैं, मासूमों के खून है। कब तक यही होता रहेगा जुल्म? और हमसे बेहतर और कौन जाने आज़ादी और खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत और गुलामी के खिलाफ खड़ा होना कितना कठिन है और कितना मुश्किल है, मगर हम मुकाबला कर रहे हैं निहत्ती कौम। मैं दुनिया से पूछ रही हूँ कि और कितने 70 साल चाहिए कि हमारी कश्मीर की आज़ादी की करारदादें मंजूर हों और कश्मीरी आज़ादी का। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में खुसूसी तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 23 मार्च कश्मीरी भी जोशो जज्बे से मनाते हैं। नहीं आएगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि घर को ठीक करना है। घर को ठीक करने की पहली जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। और आज वो जो मेरे बहन भाई बेटे बेटियां आज यहाँ से कुछ 40 मील दूर 60 किलोमीटर, वो भी इस दिन के मुंतज़िर हैं कि वो भी मिलत इस्लामिया ममलकत पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम उनकी पुष्ट पर हैं। कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने कश्मीरियों को कभी फरामोश किया जदोजहद को। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कुर्बानियाँ देंगे, दे रहे हैं आज भी पाकिस्तान के नाम पर। पाकिस्तान ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीरियों के लिए। ये दोनों का मुस्तक़बिल एक है, लेकिन इसको हासिल करने के लिए दूरअंदेशी का, बालिग नज़री का और सियासी सूझबूझ का मुजाहरा करना पड़ेगा। उसके लिए पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर एक मजबूत रियासत के तौर पर कायम करना पड़ेगा। जब तक इक़्तिसादी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, हम अपना वो मुकाम जो खो गया हमसे इस खित्ते के अंदर जनूबी शायद वो हासिल नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने, मेरे माओं बहनों बेटियों ने कुर्बानी दी हैं, 47 में पाकिस्तान बना, अल्लाह उनको उनके दर्जात को बुलंद करे। उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए कभी। और आज कश्मीरी भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में आएगा जब हम पाकिस्तान को मजबूत एक मुल्क देख सकेंगे। लेकिन इसके लिए ये मुल्क जमहूरियत के नाम पर हासिल किया गया। ये कोई लड़ाई झगड़े से, फौजी लड़ाई से ये नहीं आया, मर्द वजूद में आया। ये कायद-ए-आज़म की जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में आया। इस मुल्क के अंदर जो है जमहूरी इदारों को मजबूत करेंगे, जमहूरी उसूलों को जब तक आप नहीं मानेंगे तो ये शायद मुल्क तरक्की ना कर पाए। बहरहाल हमारी दुआ सब लोगों को अल्लाह ताला ये सलाहियत दे कि वो इस मुल्क को जो मजबूत।
दूसरी जानब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि ताकतवरों और अशराफियों को कानून के ताबे लाएंगे। पाकिस्तान किसी एक खानदान के लिए नहीं बना था। एक तकरीब से खिताब करते हुए शिबली फराज ने कहा, ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशा हैं जहां कानून की बालादस्ती हो। मुआशी नाहमवारी खत्म करने के लिए इकदाम किए, मुल्क को दुरुस्त सिमत पर गामजन कर दिया। इसको एक बाकायदा तौर पे पेश किया गया था। उस मंजिल को हासिल करने के लिए अब ये पिछले 2.5 साल से इसकी सिमत दुरुस्त हो चुकी है। फासला हमें तय करना है जो बिगाड़ मुआशरे में माजी की हुकूमतों ने पैदा किया है, जिसमें के इदारे मफलूज हुए, जिसमें के कानून खास एक गरीब लोगों के लिए सिर्फ रह गया। जो जेलें भरी पड़ी हुई हैं वो छोटे छोटे मुजरिमों से भरी हुई हैं। लेकिन इस मुल्क का कल्चर ये बना दिया गया है कि जो बड़ा चोर होगा, जिसकी के अरबों की जायदादें होंगी, उसको चोर आप नहीं कहेंगे। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या जमहूरियत या सियासत के पीछे छुपेगा और साथ ही साथ में उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करेगा जो उसको इस मकसद को हासिल करने के लिए। योम करारदाद पाकिस्तान पर सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए विफाक के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सूबों को विफाक से और कुछ विफाक को सूबे से हैं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान ज़्यादा दूरी नहीं। ये शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरे दफ्तर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो खान साहब ने यही कहा था कि अस्पताल चलाना सूबों का काम है, वफाक का काम नहीं है, और इस्लामाबाद से बैठ के अस्पताल कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जिसके बाद 2 दफ़ा कोशिश भी की गई कि ये अस्पताल किसी तरह इन एग्रीमेंट हो जाए कि सूबा सिंध इसको चला ले, लेकिन कंप्लीट डायरेक्टिव थे, क्लियर डायरेक्टिव थे सुप्रीम कोर्ट के कि इनको टेक ओवर किया जाए और ये अस्पताल वफाक चलाएगा। इंटरप्रिटेशन हो सकता है फ़र्क हो सूबे की और वफाक की, और उसी के तहत एक खूबसूरत बोर्ड बनाने की कोशिश की गई, न्यूट्रल लोगों को डालने की कोशिश की गई और सूबे से भी बोर्ड के मेंबरान मांगे गए हैं। तो ये तो अस्पताल की बात थी। जो अफसरान की बात है उस पर भी थोड़ा सा मैं तबसरा करता चलूँ कि जो रोटेशन पॉलिसी है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है। और इसमें होता ये है, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, बशमूल सिंध पूरे पाकिस्तान में कई अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से वो अपनी जगह पे टिके हुए हैं और वहाँ से हिलते नहीं हैं। वहाँ पे उनकी मामलात हो जाते हैं, सेटिंग बन जाती है, वहाँ के वो लोकल्स के साथ घुस जाते हैं और वो कब्ज़ा एक तरीके से इंस्टीट्यूशन पे हो जाता है। तो रोटेशन पॉलिसी बड़ी बेहतर रहेगी। मुझे उम्मीद है कि सूबा सिंध अपनी तजावीज़ उस रोटेशन पॉलिसी पे अगर देना चाहेगा तो ज़रूर देगा और वो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो रिव्यू ना हो सके, लेकिन ये रोटेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि ये मामलात जो हैं चलते रहें, सिस्टम जो है अपनी जगह चलता रहे। दूसरी चीज़ ये आपने जो डायलॉग का कहा, डायलॉग के लिए वज़ीर आज़म और उनकी जमात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को आगे बढ़ाने का अहद करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हिफाजत और उसकी तरक्की में हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कायद आज़म ने ही कश्मीर को पाकिस्तान की शरफ करार दिया था। कश्मीर के हसूल के लिए हम हर किस्म की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। इस मुल्क के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के वो मुल्क जो हमें कायद आज़म ने अता फरमाया उसका न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, पर उस मुल्क में जो कायद आज़म का विज़न था कि ये मुल्क के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो पीसफुली अमन से इस मुल्क में रह सकें। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को लीड किया था और 1973 का आइन दिया था। उस आइन के तहत हमें आगे बढ़ना है। इस वक्त में आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को ख़ास तौर पे याद करना चाहिए। कायद आज़म ने ही कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था और इस शहरक के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। एक बार फिर ये अज़म करना चाहिए कि कश्मीर को हासिल करने के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है कश्मीर के बारे में, उस तरीके से कश्मीर का मसला हल करना है। और अगर कुछ और इसके बारे में सोचा जाता है
तो ज़रूर वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लाके और उसके बाद कुछ इसके बारे में सोचा जाए, नहीं तो इस वक्त हमें जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है उसके तहत ही कश्मीर के मसले का हल चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी याद करना चाहिए कि 1940 की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो नशिस्त थी उसमें एक करारदाद फ़लस्तीन के भाइयों के लिए भी पास हुई थी, और आज के दिन पे हमें अपने उन भाइयों को भी याद रखना चाहिए और ये रिजॉल्व हमारे मुल्क का होना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क हासिल करने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म दूसरी जानिब कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 72 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,935 हो गई। मजीद 3,270 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,33,741 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,85,271 सेहतियात, जबकि 74,535 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,039, सिंध में 4,479, खैबर पख्तूनख्वा में 2,225, बलूचिस्तान में 230, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 338, इस्लामाबाद में 548 अमवात। 24 घंटों में 3,270 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 2,01,000, सिंध में 2,63,464, खैबर पख्तूनख्वा में 80,519, बलूचिस्तान में 19,347, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 4,974, आज़ाद कश्मीर में 11,792 और इस्लामाबाद में 52,676 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,36,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,43 लाख तक जा पहुंची। 10,03,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,96,000, ब्राजील में 2,96,000, भारत में 1,60,200, मैक्सिको में 1,99,000, रूस में 95,391, फ्रांस में 92,621, बरतानिया में 1,26,200 और सऊदी अरब में 6,613 अमवात हो चुकी हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। स्टोर में फायरिंग, पुलिस ऑफिसर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। वाक़े को सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाया गया। पुलिस ने एक मुतशिबा शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। अमरीकी रियासत कोलोराडो में डकैती की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस ऑफिसर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। वाक़े को सोशल मीडिया पर बराह रास्त देखा गया। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में भी ले लिया है। लेविस फोर्स ने बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। कोहलू में एक कार्रवाई के दौरान भारतीय साख्ता असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। असलहा में 14 एंटी टैंक माइंस, 7 RPG और 7 RPG रॉकेट और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। आपको बताएं कि बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से लेविस फोर्स ने बचा लिया है। कोहलू में एक कार्रवाई के दौरान भारतीय साख्ता असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। असलहा में 14 एंटी टैंक माइंस, 7 RPG और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें। खैरपुर के बर चौक के करीब रेंजर्स की गाड़ी पर क्रैकर हमला, रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाका सील कर दिया, जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। आपको खैरपुर के बर चौक के करीब रेंजर्स की गाड़ी पर क्रैकर हमला हुआ है। रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाका सील कर दिया, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो सिलेक्ट होता आया है। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी। लॉन्ग मार्च से 10 रोज कबल इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नथी करना ये किसका आइडिया था? ये पीपल्स पार्टी का मौकिफ था कि ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ें और ऐसा करके ही हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। नून लीग की नायब सदर के बयान पर तबसरा पीपल्स पार्टी का नायब सदर ही करेगा। हुकूमत का रवैया तो एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग है। यहाँ तक तो हम उसको मुनाफिकत खिलवा सकते हैं। वो हमें एक दिन जनाब इमरान खान साहब उठ के हमें लेक्चर सुनाता है कि मोदी जी हिटलर है, और दूसरा दिन उठ के ये कहता है कि इस हिटलर के साथ डायलॉग करना बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के फ़ैसले, कश्मीर का मुस्तक़बिल, जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं, ये इनके फ़ैसले हमारा नेशनल असम्बली को करना चाहिए, पाकिस्तान का सेनेट और नेशनल असम्बली को करना चाहिए। और इसमें भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तारीख़ी एक मौक़िफ़ रहा है, और आज हम पे ये फ़र्ज़ है कि ये तारीख़ी मौक़िफ़, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़, हर एक पाकिस्तानी का मौक़िफ़ कश्मीर पे हम कौम के सामने हर फोरम पे सामने लेकर आए, और हम जमात इस्लामी के साथ इस इशू पे मिल के काम करने के लिए खुले दिल से भी तैयार है, और इसका अच्छा नतीजा भी हो सकता है। और जो तनकीद सिराजुल हक साहब ने इस मुल्क का एहतसाब की अमल पे अभी आपके सामने किया था, उस पे भी हम काफ़ी हद तक एग्री करते हैं। और हमारा शुरू दिन से नैब की बुनियाद की दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि एक आमिर का बना हुआ इदारा जो यकतरफ़ा एहतसाब करती है, जो सिर्फ़ अपोजिशन को निशाना बनाता है, उसका करप्शन में और अकाउंटेबिलिटी में हम समझते हैं कि इस किस्म के यकतरफ़ा निज़ाम से नुकसान पहुंचाया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस बात की एग्री करती है, इंडोर्स करती है कि इस यकतरफ़ा एहतसाब के नतीजे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सबके एहतसाब के लिए एक ही इदारा होना चाहिए। ये पहली हुकूमत है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रही है। हुकूमत ताबेदार इलेक्शन कमीशन चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात दस्का इलेक्शन जैसे होंगे। सियासी डायलॉग सब्र और आपस में मुशावरत का नाम है। अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद भी हो, गैर जानिबदार भी हो, बाइख्तियार भी हो और बावकार भी हो, और ये आईन के आर्टिकल 218 और 219 का तकाजा है। हम जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर लिहाज से आज़ाद हो, तो फिर हम चाहते हैं कि वो हुकूमत के दस्तरस से आज़ाद हो, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी आज़ाद हो, और वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से भी आज़ाद हो। हम हर लिहाज से पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को आज़ाद देखना चाहते हैं, और ये जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक इलेक्शन कमीशन आज़ाद न हो तो हर इलेक्शन के बाद लोग रोते हैं, सियासी जमात एहतजाज करते हैं, नताइज को तस्लीम नहीं करते हैं, एक शाम करबला बनाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का बाइख्तियार होना ज़रूरी है। इस तरह हम ये भी चाहते हैं कि वो हुकूमतों की पाबंद भी न हो, सियासी जमातों की भी पाबंद न हो, और तमाम सियासी जमातों को यकसां मौक़े मिले, और इक़्तिदार देना, हुकूमत देना, ये अवाम का काम है, ये किसी एक इदारे के मर्ज़ी। दूसरी जानिब एनसीओसी का मुल्क भर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार।
اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں کاروبار صرف 5 دن کھولنے اور روزانہ 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ملک میں ہفتے میں 2 دن کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی۔ کاروبار بند رکھنے کے لیے 2 دنوں کا تعین وفاقی اکائیاں کریں گی۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں سیمینار اور مزارات مکمل بند رہیں گے، جبکہ کورونا SOPs کے ساتھ 300 افراد تک کے اجتماعات کی اجازت ہوگی۔ اعلامیے میں کہنا ہے کہ اسپورٹس، تہوار، ثقافتی اور دوسری تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ بند مقامات پر ہونے والے تمام ثقافتی، موسیقی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ 300 افراد تک آؤٹ ڈور شادی تقریبات کی رات 10 بجے تک اجازت ہوگی، تاہم شادی کی آؤٹ ڈور تقریبات 2 گھنٹے کے لیے ہوگی، جبکہ کسی انڈور تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب کورونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش کا معاملہ، حکومت کا بغیر امتحانات میٹرک کے طلباء کو پروموٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر تعلیم کی لاہور چیمبر میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے تعلیم کے ارکان سے گفتگو، بتایا 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات مقرر وقت پر ہی ہوں گے۔ سرونگ اسکولز کے وزیر تعلیم کو تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کر دیں۔ شفقت محمود نے تجاویز کو سراہتے ہوئے ہمدردانہ غور کی یقین دہانی کروا دی۔ ہمارے لیے تعلیمی ادارے بند کرنا ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پچھلے 1 سال میں تعلیم کا، خاص طور پہ ایسے ملک میں جہاں تقریباً 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ ویسے ہی اسکول نہ جا رہے ہوں، تو اگر اسکول بند ہو جائیں اور لوگوں کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے اور بہت سارے بچے اس میں ایڈیشن ہوں گے جو اب کبھی اسکول نہیں جائیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیلنجز ہیں ایجوکیشن کے اندر، لیکن یہ بڑے ہم نے پچھلے سال جب یہ سارا معاملہ ہوا تو کئی چیزیں کی، کئی انیشیٹیوز لیے، آن لائن ایجوکیشن کو انکریج کیا۔ اس کے علاوہ ایک ٹیلی اسکول جو تھا وہ چند ہفتوں کے اندر ہم نے ٹی وی پہ لانچ کر دیا، جو کہ اب بھی چل رہا ہے اور 10 گھنٹے روز تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن تعلیمی ادارہ کھلا ہونا اور آن لائن کے بڑے مسائل اور بھی ہیں، تو وہ بات نہیں ہے جو کہ کلاس روم میں ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے ایسے یونیورسٹیاں یا اسکول ایسے لوگ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس کمپیوٹرز تھے، وہاں پہ آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس پہ طالب علم خوش نہیں ہے۔ تو اس لیے مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ مشکل فیصلہ ہے۔ اب بھی ہم نے اسکولز بند کیے ہیں، اور 24 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہے، اور اس میں ہم سوچیں گے کہ اب کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے، اور جو اس وقت صورتحال ہے کووڈ کی، اس کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں کہ وزارت تعلیم کی ضرور خواہش ہے کہ تعلیمی معاون خصوصی حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد بند کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، عوام کو افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا واضح موقف ہے کہ مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے ہی ہماری نجات اور بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل بھی ضروری ہے۔ کورونا ویکسین کے حوالے سے بعض افواہوں، شرارتوں اور پراپوگنڈے کا جواب دینا ہے۔ دنیا اسلام کے تمام دارالافتاء، مجمع الفقہ الاسلامی، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کورونا ویکسین جو ہے اس کو لگوانا چاہیے، اور وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ کورونا ویکسین کو ہر فرد جو ہے وہ اس کو لگوائے۔ یہ شرعاً بھی جائز ہے، اور قانون اور آئین کے مطابق بھی جو ریاست فیصلہ کرتی ہے اس پر عمل کرنا جب شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہو تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے خود کو تکلیف سے بچنے اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کورونا ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگواتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں، کہ شریعت اسلامیہ نے خود کو تکلیف سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا حکم دیا ہے، لہذا کورونا ویکسین کو لگوانا جائز بھی ہے اور شرعی ذمہ داری بھی ہے۔
और इसी तरह रोजे के दौरान कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो दारुल इफ्ता सऊदी अरब और मजमा अल फिक्र इस्लामी का फतवा आया है, हम उसकी तायीद करते हैं कि रोजे के दौरान। आगे बढ़े, आपको बताएं ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की गलत अदायगियां की गईं। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सरबमोहर रिकॉर्ड खोलने की भी सिफारिश कर दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद कमीशन में पेश नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब दस्तावेजात से मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता, इतनी बड़ी रकम गलत शख्स को अदा करना रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गई। पाकिस्तानी बाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से मखसूस हिस्सा गायब हो गया। ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले लिया। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सरबमोहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश कर दी। नैब रिकॉर्ड को डीसील करके जायजा ले कि इसका क्या करना है। स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 26 मार्च को मरीम नवाज की पेशी पर अवामी शो की जिम्मेदारी हमजा शहबाज ने ले ली। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते, मरीम नवाज के साथ नैब ऑफिस जाने का भी इम्कान। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। मरीम नवाज काफिले की सूरत में जाती उम्रा से नैब दफ्तर पहुंचेंगी। मौलाना फजलुर रहमान की भी पार्टी रहनुमाओं को मरीम नवाज की पेशी पर पहुंचने की हिदायत। नून लीग के हजारों कारकुन नैब ऑफिस के बाहर जमा होंगे। इंतजामिया ने खोई खेला तो जिम्मेदार चेयरमैन नैब होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की वार्निंग, कहा 26 मार्च को पंजाब के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली नैब ऑफिस पहुंचेंगे। मरीम नवाज के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारा कोई भी कारकुन जो है वो किसी किस्म की वायलेंस नहीं करेगा। हम पुरअमन तौर पे अपनी लीडर के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पे जमा होंगे। वहाँ पे जो उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए, तो उन बैरियर से जब मरियम नवाज शरीफ साहबा की गाड़ी क्रॉस करने लगी तो उस वक्त जो है वो कारकुनों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहाँ से जो है वो फिर बात बिगड़ी और फिर जो है वो पथराव शुरू हो गया। पथराव हमारे सिर्फ कारकुनों ने किया, पुलिस ने भी की। नैब का काम तो सिर्फ ये है कि जो उन्हें शहजाद अकबर कहे उसके ऊपर वो अमल करे। अच्छा राणा साहब, वो कहे कि जी फलां को नोटिस भेजो, फलां को नोटिस भेजो, और साथ ही नैब वाले जो है वो कारोबारी लोगों को भी नोटिस जो है अपने खर्चे के लिए भेज दें। अच्छा राणा साहब, नैब का इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये नैब का अदारा बिल्कुल पिट चुका है। अब इसके ऊपर किसी को कोई यकीन नहीं है और ना ही उसका अमल कोई जो है वो कानून के मुताबिक है। बाकी नैब का एसओपी से क्या ताल्लुक है? ये वहाँ पे जो उस दिन जो नैब के ऑफिस को जो है वो चारों तरफ से सील किया था, वो इंतजामिया ने किया था। वो उस वक्त सीसीपीओ ने किया था। मैं ये कहता हूं कि हमारे कारकुनों को ना रोका जाए। जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून की लीडर, एक तरफ कोरोना का चैलेंज, दूसरी तरफ नानी अम्मा यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। मुअव्विन खसूसी फिरदौस आशिक आवान का तंज, कहा नौजवान नानी अम्मा की लोरियां जरूर सुने, कानून हाथ में ना ले। नून और शीन लीग एक दूसरे के सामने आ गए हैं। नानी अम्मा यूथ कन्वेंशन से खिताब फरमा रही थी और वो नौजवानों को गुमराह करने, वर्गलाने और आईनी अदारे पे हमलावर होने के लिए तरगीब दे रही थी। और जिस बेरहमी से वो उन नौजवानों के जहनों को आलूदा करने में मसरूफ़ अमल थी, ये इस बात की अक्कासी करता है कि वो नैब तो जाना चाहती हैं लेकिन फिल्मी स्टाइल से, और वो नैब में पेशी जो है फिल्मी स्टाइल से जाके बड़के मार के, ललकार के, फोटो शूटिंग करते हुए
वहाँ नौजवानों के जत्थों के साथ अदारे को प्रेशराइज करके अपने खिलाफ स्याहकारी और काले करतूतों को पर्दा डाल के जिस तरह का मनफी रवैया अपनाना चाहती हैं, उस जैली राजकुमारी को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप फूलन देवी का रूप ना धारें, क्योंकि ये फिल्मी स्टाइल की भड़कें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। सियासत आपके बस का रोग नहीं है। इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।